Today's webinar topic is all about purchase management in Tally Prime. Well, we will be watching what is the different methods and the process of purchase management and how Tally Prime will support us to manage the entire data of purchase management. So let's move ahead. Before moving ahead, let me just take a brief introduction about the organization. So basically, Rajlakshmi Solutions Private Limited is into multiple software sales and services and as well customization according to the organization's requirement. So what are the different softwares and services we are into? We are part of Tally Prime software and accounting software, and we are part of SAP Business One, a key for every business solution, and we are part of Bitrix CRM, a customer relationship management software, which supports us to manage the tasks, leads, and projects, and as well as an entire report system can be managed to the CRM. And apart from this, we are part of Skill India project. This is a government project specifically concerned for the students, education, and the employment. So this is all about the softwares. And beyond this, this pandemic has taught us many things by multiple ways. So this pandemic helped us with one more software as well, that is Tally on Cloud. And apart from this, we are part of multiple softwares. So when I talk about services, we provide multiple services here like advisory, HR services, digital marketing services, etc. So basically the HR services includes from the hire till retire the entire life cycle of human resource management. So like if you wanted to have a system process or a complete software for your organization, we are here to address you with the right software and ensure the entire implementation process is also done with multiple training and presentations, etc. So this is all about softwares and services. And to be more specific on digital marketing is a space as of now which is providing multiple organization a wonderful benefits in marketing their products or their solutions towards the market with the help of social media sites. So use of digital marketing is really one of the most important thing. By focusing the current scenario, we can strategize in a right way our business. So this is all about the light introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So now let's see what is the purchase management, how we can do the purchase management in Tally Prime. So we do have speakers here, and we have the process of today's webinar would be the first part will be a presentation will be taken ahead. The theoretical knowledge will be presented, and then there will be a demo, and then there will be a resource person who will be talking on the topic with the add-on. But today, as of now, due to certain emergency, we don't have the resource person. So the topic will be completely covered by two different resource persons of the organization. So before moving ahead towards the resource person, let me again give you instructions on today's topic. The first and the most important thing is our webinar is getting recorded. So request you to please check with our YouTube if you really wanted to. If you have missed somewhere or if you wanted to check the webinar once again. And at the same time, if you have any questions or any doubts, request you to please drop a message in the comment box, or you can raise up your question as well. We will provide you the discussion session as well in the webinar. So this is all about the introduction part of today's webinar. So moving ahead with the resource person, Ms. Priyanka, are you here? Yes, ma'am. Hi, Priyanka. Priyanka will be presenting the presentation, and we have Mr. Firoz with us. So hi, Mr. Firoz. Hello, ma'am. So Mr. Firoz will be showing you the live demo with the software of Tally Prime. So it's completely over to you, Priyanka, and Mr. Firoz. Please move ahead with your presentation, and you can showcase with the live demo as well. Yes, ma'am. Thank you.
Ma'am, please share the screen. Yes, Priyanka. Ma'am, PPT. Presentation. So who's sharing the presentation, Priyanka? Sampada ma'am. Yeah, sure. So Sampada, request you to please share the screen. Yes, move it, some Priyanka. Yes, ma'am. Hello, very good evening, everyone. Thank you for joining today's webinar cum training session. Myself, Priyanka, representing on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Today, we will discuss about one of the most important features of Tally Prime, that is purchase management. So let's start with the introduction of purchase process. Next slide. Purchase process in Tally Prime. When you are into the business of goods or services, the purchase process that you follow may be simple cash purchase or even purchase on credit. When you receive credit from your party, you can certainly implement measures to track the credit and pay the dues on time. Which means जब आप कोई गुड्स और सर्विसेज के बिजनेस में होते हो तो जो परचेज प्रोसेस होता है आइदर आपका सिंपल कैश परचेज होता है और क्रेडिट परचेज में होता है। जब आप पार्टी से क्रेडिट रिसीव करते हैं आप क्रेडिट एंड पे ड्यूज को ट्रैक करते हैं जो ऑन टाइम मिलता है। बेस्ड ऑन द टाइप और वॉल्यूम ऑफ बिजनेस दैट यू रन कैन यूज परचेज ऑर्डर और रिसिप्ट नोट एंड सो ऑन। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड एंड वी कैन सी टाइप्स ऑफ परचेज। Next slide, please. Some example of purchase process. First one is cash purchase. Recording purchase for instant payment is a single step process in Tally Prime. Next one is credit purchase and payment. When you purchase on credit, apart from the details entered in the cash purchase voucher. Third one is purchase return and debit note. When you record purchase returns in your business process, such return transactions can be recorded in Tally Prime that against the purchase invoice. Fourth one is receipt note and rejection out. If your business uses receipt note when shipping the item from your suppliers, you can use Tally Prime to create the same. If item returned, you can record as a rejection out and settle them. Next one is purchase order. In case you follow purchase order processing in your business, you can create purchase order in Tally Prime. Move to next slide and see some reports for business purchase management. Reports know your purchase. Business require real-time updates on day-to-day purchase. This helps to keeping track of stock availability, tracking purchase day-wise, month-wise, or any period provide insight on the overall purchase. Which means every business को real-time update required होते हैं to know their day-to-day purchase. तो यह आपको help करता है ट्रैक करने में परचेज की इन स्टॉक कितना है। आप इसे डे वाइज, मंथ वाइज और पीरियड वाइज ट्रैक कर सकते हैं। इवन वेरियस रिपोर्ट्स आर अवेलेबल टू ट्रैक परचेज पेबल, पेंडिंग ऑर्डर्स, पेंडिंग परचेज एंड सो ऑन। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी हाउ वी कैन ट्रैक एडिशनल कॉस्ट इन परचेज इनवॉइस। Track additional cost in purchase invoice. You can automate the allocation of expenses to each stock item in the invoice mode. If you want manually allocate the expenses, you can record the transaction in vouchers mode. आप every stock item के expenses automatically allocate कर सकते हैं in the invoice mode. If अगर आपको manually expenses allocate करने हैं, आप transaction के vouchers mode में भी record कर सकते हैं. In the next slide, we can see how to record debit note for purchase return and increase purchase in value. Debit note is a document issued to a party stating that you are debiting their account in your books of accounts for a stated reason or vice versa. Debit note document party stating के लिए issue होता है. It means your books of accounts are getting debited to from their account for a stated reason or vice versa. It is commonly used in case of purchase return, escalation, de-escalation in price, or any other expenses incurred by you on behalf of the party and etc. So this is the important information about purchase management. So it ends from my side. Thank you so much, everyone. Thank you, Priyanka ma'am, for wonderful presentation.
Hello everyone, myself Feroz Sayed from Rajlakshmi Solution Private Limited. Presenting live demo. So मैं स्क्रीन शेयर। तो हम देखने जा रहे हैं परचेस मैनेजमेंट, जो उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है परचेस ऑर्डर, जो कि ऑलमोस्ट सभी को तो पता ही है कि परचेस ऑर्डर क्या होता है और कैसे होता है, बट ये नहीं पता होता है कि हमें टैली में कैसे उसको मेंटेन करना है। तो उसके लिए हमारे पास अभी बताते हैं, अभी ये डेमो बताता हूँ मैं। सबसे पहले हम परचेस ऑर्डर की डिटेल्स ऑन करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे वाउचर्स में। देन यहाँ पर F12 में कुछ ऑप्शन है जो परचेस ऑर्डर रिलेटेड रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड रिसिप्ट ऑर्डर एंड इंपोर्ट डिटेल्स, इसको भी यस करना है। एंड सेकेंड प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स, इसको भी यस करना है। ओके, देन उसके बाद में हम ऑर्डर वाउचर ओपन करते हैं। उसके लिए हमें F10 करना है, जिसमें हमारे ऑर्डर की जो हमारे वाउचर टाइप है सभी की लिस्ट शो होंगी। उसमें हम लेंगे हमारा परचेस ऑर्डर, जो हमारा उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल F9। ये मेरा ऑलरेडी एक्टिव है। अगर आपका एक्टिवेट नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन बताएंगे आपको शो इनएक्टिव में, तो उसको एक्टिव कर देना है। देन उसके बाद में हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी हम F2 से हमारा डेट लेंगे, जो हमें परचेस ऑर्डर का डेट जो रखना है, तो हम उसको यहाँ पर ले लेंगे F2 से। देन उसके बाद में हमारी जो पार्टी रहेंगी जिससे हमको ऑर्डर देना है, वो रहेगा हमारा मिलिन टेक्सटाइल लेते हैं हम। ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी है। और यहाँ पर हमको अगर कोई भी अगर डिटेल डालना है, टर्म्स ऑफ पेमेंट, अदर रेफरेंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, या फिर डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, एंड आपका जो भी डिटेल्स है आपको अगर मैंडेटरी होगा तो यहाँ पर डालना है, अदरवाइज कंपलसरी तो नहीं है। ओके, मैं इसको कुछ डिटेल्स नहीं डालता हूँ, ऐसा सेव कर लेता हूँ। ये हमारा पार्टी डिटेल आ जाएगा। देन उसके बाद में ये हमारा परचेस ऑर्डर नंबर, जो हमको ऑर्डर नंबर रखना है तो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके लिए लेते हैं हम परचेस ऑर्डर 01, ये हमारा हो गया परचेस ऑर्डर नंबर। देन लेजर लेते हैं परचेस का। उसके बाद में हमारे पास जो दो स्टॉक आइटम बने हुए ऑलरेडी, तो उसमें से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कीबोर्ड। एंड उसके बाद में यहाँ पर उसका लेंगे हम, ये जो ड्यू ऑन है ये हमारा एक्चुअली परचेस का ऑर्डर का लास्ट डे, इसका लास्ट डेट रहेगा, इसके अंदर ही हमको परचेस आना चाहिए। हमारा जो भी प्रोडक्ट हम परचेस ऑर्डर कर रहे हैं वो हमें रिसीव होना चाहिए, उसके लिए ये डेट लेंगे हमें। देन उसके बाद में क्वांटिटी डालेंगे 100 नोस। उसका रेट हमें जो भी रखना है वो यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, 500 उसका रेट ले लेंगे। ऑटो कैलकुलेट हो गया है। देन उसके बाद में हम इसको जीएसटी अगर लगाना होगा तो यहाँ पर हम जीएसटी भी लगा लेंगे। हमारा CGST आ गया, देन उसका SGST भी आ गया। ये हमारा परचेस ऑर्डर इनवॉइस से हो चुका है। देन अभी इसको हम रिपोर्ट देखते हैं। अभी इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, देन परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। इसके अंदर और भी ऑप्शन है। अभी हमको स्टॉक ग्रुप वाइज देखना है, या फिर स्टॉक कैटेगरी वाइज देखना है, या फिर स्टॉक आइटम वाइज देखना है, तो ये सभी यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। हमें जिस लेवल पे देखना है उस पर बस जस्ट इंटर करना है। तो हम लेते हैं ऑल ऑर्डर्स, इसमें हमें सभी ऑर्डर्स रिफ्लेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर यह हमारा पेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि ये इसका हमें अभी तक प्रोडक्ट हमें मिला नहीं है, अभी इसका परचेस ऑर्डर रेस नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पर हमें पेंडिंग में ही दिखेगा। एंड यहाँ पर बता रहा है कि डेज उसका कभी एक्सपायर होने वाला है, ओवरड्यू कब से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए हम सेट करते हैं, ओवरड्यू देखने के लिए बता देता हूँ आपको। हमने जो लिए 15 जून का है उसका इनवॉइस लिए, एंड उसका जो ड्यू डेट डाले हमने, अब इसको 16 जून करते हैं एंड इसको ऐसा सेव कर लेते हैं। तो एंड उसके बाद में Alt F2 से हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे 15 जून टू 16 जून। तो यहाँ पर बता रहा है हमें जो हमारा ओवरड्यू है वो यहाँ पर रिफिल कर रहा है। तो इसको हमको यहाँ से निकालने के लिए क्या करना है,
हमारी जितनी भी लिस्ट रहेंगी पूरी वहाँ पर शो हो जाएंगी। तो हमको वहाँ से लिस्ट में से निकालने के लिए हमको परचेस बिल रेस करना है, जो कि हमारे पास ऑर्डर रिसीव हो चुका है। तो उसके लिए नॉर्मल हम परचेस इनवॉइस पे जाते हैं वाउचर्स में, देन यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद में डेट सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा जो भी है परचेस का डेट। जो हमारा पार्टी था जिससे हमने ऑर्डर दिए है, तो जस्ट वो पार्टी को सेलेक्ट करना है। वो हमारा मिलियन टेक्सटाइल से हमको ऑर्डर दिए थे, ये सेलेक्ट कर लिए। देन उसके बाद में हमने ऑर्डर डिटेल डाले नहीं थे, तो यहाँ पर ब्लैंक आ रहे। और अभी यहाँ पर लेते हैं परचेस लेजर। देन उसके बाद में हमारा जो स्टॉक आइटम था कीबोर्ड, अभी 0 क्वांटिटी बता रहे। अभी इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स आएंगे। जितने भी हमने परचेस ऑर्डर के बिल रेस किए तो सभी की ऑर्डर लिस्ट की यहाँ पर शो करेंगे पूरा लिस्ट। तो हमने एक का भी क्रिएट किया तो उसका यहाँ पर दिख रहा है, तो हम इसको एज सेलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली उसका क्वांटिटी एंड रेट आ जाता है। तो इस टाइप ये हमारा परचेस ऑर्डर क्लियर हो जाएगा, मीन्स हमको वहां पर नहीं दिखेगा। इसका CGST एंड HGST ले लेते हैं इसका। ये हमारा परचेस इनवॉइस रेस हो गया उसके अगेंस्ट। एंड इसका प्रिंट प्रीव्यू भी एक बार चेक कर लेते हैं। अभी अल्ट पिक करने के बाद में करंट में, देन प्रीव्यू। अभी प्रीव्यू में जाएंगे तो हमें उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिखेंगी, इनवॉइस की टोटली डिटेल्स यहाँ पर हमको शो करेगा। देन अगर और भी हमको फीचर चाहिए प्रिंट में, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर में आप इंटर करेंगे ना, तो शो मोर करने के बाद भी और भी बहुत सारे फीचर्स है। इसमें से जो भी आपको चाहिए होता है तो वो हम बस यस कर लेंगे तो हमको इनवॉइस के अंदर शो हो जाएगा। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये हमारा परचेस इनवॉइस सेव हो गया। अभी हम वापिस जाकर देखते हैं रिपोर्ट में, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑल ऑर्डर्स और उसका पीरियड सेलेक्ट करेंगे 15 जून टू 20 जून। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहे, क्योंकि हमारा कोई अभी पेंडिंग ही नहीं है वॉचर, तो उसके लिए नहीं दिख रहे। जब भी हमारे ओवर ड्यूज रहेंगे या फिर पेंडिंग वॉचेस रहेंगे तो पूरे के पूरे यहाँ पर हमको लिस्ट दिखेगा सभी का। तो अभी नहीं है तो उसमें कोई दिख नहीं रहे। तो ये हमारा परचेस ऑर्डर एंड परचेस इनवॉइस का हो गया है। देन उसके बाद में देखते हैं हम रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में हमको पता नहीं होता है कि हमारे पास बहुत सारा स्टॉक आइटम होता है ना, तो कभी किसका स्टॉक आइटम खत्म होगा, कभी माइनस होगा, या फिर किसका कितना स्टॉक आइटम हमारे पास अवेलेबल है अभी, तो वो हमें पता नहीं चलता है। तो उसके लिए हम रीऑर्डर सेव करते हैं। अभी उसके लिए स्टॉक आइटम तो बने हुए ऑलरेडी, स्टॉक आइटम बनाना रहता है, स्टॉक आइटम है। देन उसके बाद में हम जाएंगे गो टू में, अल्ट G, देन यहाँ पर टाइप करेंगे रीऑर्डर। तो अभी दिख रहा है स्टॉक ग्रुप रीऑर्डर स्टेटस, इसको हम इंटर करेंगे। एंड उसके बाद हमारा ग्रुप दिख रहा है यहाँ पर, स्टॉक आइटम का जो भी ग्रुप है, ग्रुप वाइज हमारे स्टॉक आइटम शो हो रहे। तो हम इंटर करेंगे प्राइमरी को। देन यहाँ पर बता रहा है कि आपका अवेलेबल स्टॉक कितना है, 100 नोस, एंड आपका नेट अवेलेबल 100। और अपना रीऑर्डर तो ऑलरेडी सेट हुआ है, मैं रिपीट बता देता हूँ आपको सेट करने का। ओके, तो हम अभी इसका रीऑर्डर से करते हैं। अभी देखिए रीऑर्डर पे यहाँ पर इंटर करेंगे हम, तो यहाँ पर ऑप्शन देगा रीऑर्डर क्वांटिटी, कि आपका रीऑर्डर कितना रखना है, क्वांटिटी आपका जो रहेगा। तो उसमें लेते हैं हम 100। देन कितने दिन में चाहिए, 3 डेज भी ले सकते, 3 मंथ भी, 3 वीक भी, ईयर्स भी। यहाँ पर पीरियड है, अपने को इसमें से जो सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। तो हम इसको लेते हैं 3 डेज। देन उसके बाद में इसकी जो स्टेटस है, उसका प्रायोरिटी जो रहेगा तो हायर रखना है या लोअर रखना है, तो इसको रखते हैं हम हायर। देन हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना रखना है, हमारा मिनिमम हम जो रखेंगे उससे कम भी ऑर्डर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट ये हमारे एक सेटअप के लिए हम मिनिमम ऑर्डर हमको यहाँ पर सेट करना है। तो उसका लेते हैं हम 200 एंड इसको सेव कर लेते हैं।
अभी देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो अवेलेबल है हमारे पास, वो बता रहा है क्या 100 नोस, एंड हमारा रीऑर्डर लेवल जो हमने सेट किए है वो भी 100 नोस की है, एंड हमारा मिनिमम ऑर्डर जो था वो 20 नोस 200 नोस है। तो अभी देखते हैं अभी क्या होगा। अभी अगर ये 100 से अगर नीचे हमारा लेवल माइनस हो जाता है तो हमको ये शॉर्टफॉल में नजर आएंगे। मीन्स अभी कितने, ये 100 है, तो हम इसका एक सेल सेल बिल अगर रेस कर देंगे तो स्टॉक माइनस हो जाएगा और ये शॉर्टफॉल में दिखेगा। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, एक एंट्री पास करके वाउचर्स में, देन सेल, हमारा डेटर पार्टी AR इंडस्ट्री एंड सेल। उसके बाद में हमारा कीबोर्ड कितना है, 100 क्वांटिटी अवेलेबल है अभी, तो हम 100 में से 50 माइनस कर देते हैं, मीन्स उसको सेल कर लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल इनवॉइस सेव हो चुका है। देन उसके बाद में हम अभी जाकर देखते हैं वापस रीऑर्डर में, तो उसके लिए गो टू में रीऑर्डर, स्टॉक ग्रुप रीऑर्डर स्टेटस, इस पे इंटर करने के बाद में प्राइमरी, देन यहाँ पर क्या बता रहा है, हमने जो लेवल सेट किया था उससे माइनस हो चुका है हमारा स्टॉक। मीन्स हमारा कितना था, 100 उसका लेवल था, तो 100 से नीचे आ गया, कितना नीचे आया शॉर्टफॉल में आपको रिफ्लेक्ट करेगा। मीन्स हमारे 50 माइनस हो चुके हैं। तो हमको क्या करना है, जल्द से जल्द रीऑर्डर करना है, मतलब ऑर्डर पास करना है हमें। हमारा जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना था 200, तो वो वैसा ही रहेगा। देन हमको जो ऑर्डर टू भी प्लेसेट करना है, हमको जितना भी ऑर्डर कर सकते, 200 तो भी करना है मिनिमम, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो हमारा ये शॉर्टफॉल में से निकल जाएगा। अभी हमारा कितना माइनस बता रहा है, 50 माइनस बता रहा है, तो एक हम परचेस ऑर्डर रेस करते हैं इसके लिए, क्लियर करने के लिए। अभी जाते हैं वाउचर्स में, देन उसके बाद में हमारा F9 प्रेस करेंगे तो परचेस में हमारा क्रेडिटर पार्टी, परचेस एंड कीबोर्ड, अभी हमारे पास है 50 क्वांटिटीज, तो हम अभी परचेस करते हैं 100 क्वांटिटीज। ये हमारा हो गया परचेस से। अभी गोटो में जाएंगे, रीऑर्डर टाइप करेंगे तो स्टॉक ग्रुप रीऑर्डर, देन प्राइम। अभी यहाँ क्या बता रहा है, हमारा क्वांटिटी बढ़ चुका है, 150 हो चुका है, एंड हमारा जो शॉर्टफॉल में जो 50 माइनस आ रहे थे अभी वो लेवल में आ चुके हैं। मीन्स हमारे रीऑर्डर लेवल से ऊपर चले गए, तो यहाँ से निकल जाता है। तो इसी तरह हमारे जितने भी स्टॉक आइटम रहते हैं सभी को 1 बाय 1 हमको सेट करना रहता है रीऑर्डर। तो सभी के सभी यहाँ पर हमको उसका पूरा लिस्ट दिखेगा कि कौन सा ऑर्डर कभी खत्म होने वाला है, कभी माइनस हुआ और कितना हुआ, तो वो सभी हमको पूरा यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। तो उसके लिए हम ये रीऑर्डर यूज करते हैं। तो सेकेंड हमारा दूसरा जो पॉइंट है, आइटम बैच वाइज डिटेल। जो हम बैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। जब हम इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं ना तो उसमें बैचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या होता है, हमको पता नहीं चलता है क्या हमारा जो स्टॉक आइटम ये किस बैच का है, कौन सी बैच का है। प्लस उसमें एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हैं अपन, और उसके एक्सपायरी दिन कितने, एक्सपायरी डेज वो भी सेट कर सकते हैं। तो हमको बैच वाइज पूरा डिटेल दिखेगा, कौन सा बैच कब एक्सपायर होने वाला है, पूरा उसका रिफ्लेक्ट करेंगे हमें। तो उसके लिए मैं अभी बताता हूँ। उसका ऑप्शन है F11 में, देन यहाँ पर करना है इनेबल बैचेस। अभी ऑप्शन मेरा ऑलरेडी यस है। इनेबल बैचेस करने के बाद में एक सेकंड ऑप्शन और एक है, मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। इसका यूज होता है कि हमारे स्टॉक आइटम को एक्सपायरी डालना है या नहीं है, ये यस रखेंगे तो हमें वो ऑप्शन एक्सेप्ट हो जाएगा, हमें दिखेगा। तो ये ऑप्शन यस रखते और कंट्रोल ए से सेव कर लेते। देन उसके बाद में वाउचर्स में आएंगे, जो हमारा पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे, परचेस, देन कीबोर्ड एंड माउस जो हमारा ऑलरेडी स्टॉक है। तो इसमें से हमें क्या करना है, कीबोर्ड को अल्टर करना है। जो हमारा स्टॉक आइटम रहेगा ना उसको अल्टर करके
ये ऑप्शन यस करना है, मेंटेन इन बैचेस। अगर ये ऑप्शन नहीं दिखता है तो यहाँ पर F12 में आपको ऑप्शन दिखेगा, वो जस्ट ऑन करना है आपको। ये ऑप्शन है मेंटेन स्टॉक आइटम इन बैचेस, इसको यस करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देन इसको यस करना है, एंड यस करने के बाद में बता रहा है दूसरा ऑप्शन, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। जब हम मैन्युफैक्चर का यूज करते हैं तो उस टाइम भी हम स्टॉक आइटम वगैरह सेलेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर ये बैच की एक्सपायरी डेट और बैच ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है वहाँ पर लाने के लिए पहले ये ऑप्शन होना कंपलसरी है। ये ऑप्शन यस रहेगा तो ही वहाँ पर हमें ट्रैक होगा। तो हम सेकंड ऑप्शन जो है यूज एक्सपायरी डेट, जो हमें स्टॉक आइटम पर एक्सपायरी डेट सेट करना है, तो इसको हम कर लेते हैं यस। अभी इसको कंट्रोल से सेव कर लेंगे। देन यहाँ पर बता रहा है आपके बैचेस, मीन्स अभी हमारे पास इसको कौन सी बैच में सेट करना है। एक डिफॉल्ट में जो रहता है हमारा प्राइमरी बैचेस है, तो प्राइमरी बैच भी ले सकते हैं। और सेकेंड हमारा न्यू नंबर पे करेंगे, हमको जो भी मैनुअली बैच क्रिएट करना है तो यहाँ से क्रिएट करके हम उसको सेव कर सकते हैं। अभी मैं लेता हूँ बैच 1 एंड उसका क्वांटिटी लेंगे 100, 500 पर नोस, और यहाँ पर उसका बता रहा है एक्सपायरी डेट। अभी यहाँ पर हम इनवॉइस पास कर रहे हैं 16 जून का, और इसका एक लाइक एग्जांपल के लिए एक 17 जून का हम उसका एक्सपायरी डेट सेट करते हैं। हम डेट भी सेट कर सकते हैं एंड डे भी सेट कर सकते हैं, मीन्स 1 यहाँ पर 1 डालेंगे तो ऑटोमेटिकली डे आ जाएगा। तो हम इसको 17 जून ले लेते हैं, ऐसा सेव कर लेते हैं। ये हमारा जीएसटी, इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। और एक बैच बनाएंगे हम, जो कि हम सेल इनवॉइस में बनाएंगे। उसके लिए F8 सेल इनवॉइस एंड हमारा माउस, तो ये स्टॉक आइटम को भी अल्टर करके ये ऑप्शन यस कर लेना है। कंट्रोल ए, देन उसका बैच, इसका बैच डालेंगे हम बैच 2, इसका क्वांटिटी डालेंगे 50, 200 पर नोस, और उसका एक्सपायरी डे डालेंगे। तो इसको डालते हैं हम 1 डे, पहले का डाले थे हमने डेट डाले थे, और इसमें हम लेते हैं अभी दिन। तो एक दिन का हमने इसको सेट कर लिया। CGST एंड SGST, ये हमारा सेव हो गया। देन इसका रिपोर्ट लेवल पे बता देता हूँ। रिपोर्ट में जाने के लिए डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक्स, देन बैच। अभी बैच पे इंटर करेंगे तो हमारा जितना भी स्टॉक आइटम लिस्ट है पूरा शो होगा, और उसके बाद जो भी स्टॉक आइटम को क्लिक करेंगे आप तो उसके अंडर में जितने हमारे बैचेस है ना सभी दिखेंगे। अभी तो हम इंटर करते हैं कीबोर्ड पे, देन हमारे बैच यहाँ पर दिख रही है। अभी क्या है, बैच 1 जो है हमारी, उसका प्लस आगे एक्सपायरी डेट भी बता रहे हैं। अभी इसको इंटर करेंगे हम तो यहाँ पर स्टॉक आइटम नेम, बैच नेम, एक्सपायरी डेट प्लस उसका इनवॉइस का जो भी डिटेल्स है इनवॉइस के साथ आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाएगा। तो ये इससे हमको पता चलता है कि हमारा एक्सपायर कब होने वाला है बैच। हमारा बैच की डिटेल भी दिखती है, तो बैच की लिस्ट भी। अभी यहाँ पर देखिए F8 करेंगे बैच वाइज, तो हमारे पास जितने भी बैचेस रहेंगे तो उसका टोटली यहाँ पर लिस्ट शो होगा आपको। उसमें से इंटर करेंगे तो उसके अंडर की डिटेल पूरी आपको आ जाएगी। तो ये था हमारा बैच वाइज वाला। देन उसके बाद में लेते हैं हम एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेस। इसका क्या होता है ना, हम नॉर्मली जो इनवॉइस क्रिएट करते हैं ना तो उसमें हम एक्सपेंस वाले भी कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो हम ये परचेस करते टाइम हम जब ये जो यूज़ करते हैं ना उसको हमको दिखाना है या नहीं दिखाना, वो ऑप्शन इसके लिए यूज़ होता है।
तो उसके लिए क्या करना है, हमें वाउचर्स में जाना है, देन एक इनवॉइस क्रिएट कर लेंगे हम। पहले हम पहले के डिलीट कर लेंगे, ठीक है। वाउचर्स में आए, F2, 10 जून का में एक इनवॉइस पास करते हैं। परचेस लेजर, देन हमारा कीबोर्ड, क्वांटिटी ले लेंगे हमारा 100, इसको नॉर्मल सेव करना है। देन उसके बाद में हम जो लेते हैं, जो हमारा पैकिंग चार्जेस रहता है, कार्टिंग चार्जेस रहता है, हमाली चार्जेस रहता है, ये जो भी रहता है हम वो जो परचेस में ऐड करते हैं ना, तो वो जस्ट लेना है। ये नॉर्मल एक सेव कर लेते हैं पहले। ये पैकिंग चार्जेस लेंगे, उसको कंट्रोल इंटर करके चेक करेंगे, उसका अंडर जो लिए हमने डायरेक्ट एक्सपेंस लिए, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस लेके इसको सेव कर लेना है। देन उसका ले लेते हैं हम 1000 रुपीज, उसका चार्जेस ले लेंगे। देन उसके बाद में CGST एंड SGST, इन्वेंट्री बुक एंड स्टॉक आइटम। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे हमारा जो स्टॉक आइटम है, वो आइटम वाइज भी देख सकते हैं हम। अभी इंटर करने के बाद यहाँ पर बता रहे हैं, उसका डेट ले लेंगे जो डेट का हमने इनवॉइस पास करे। अभी यहाँ क्या बता रहा है, 50,000, बट हमारा इनवॉइस का अमाउंट कितना है, 60,000 उसका टोटल अमाउंट है। अभी उसमें क्या नहीं दिख रहा है, हमारा पैकिंग चार्जेस एंड सिर्फ नॉर्मल जो बेसिक अमाउंट है हमारा, उतना ही यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर इनवर्ड में शो कर रहे हैं। तो ये दिखाने के लिए हमको कॉस्ट ऑफ परचेस यूज करना पड़ता है। तो ये उस डायरेक्ट एक्सपेंस का जो अंडर लिया हुआ है उसको भी अल्टर कर देते हैं। अल्टर करने के बाद में ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ये ऑलरेडी नॉट एप्लीकेबल रहेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी करना है। क्योंकि क्वांटिटी पे ले रहे हैं ना हम, तो क्वांटिटी पे करना है। एंड अगर वैल्यू पे लेते हैं तो वैल्यू पे करना है। तो अभी हम क्वांटिटी पे ले रहे हैं, तो इसको एज अ सेव कर लेना है, कंट्रोल एस से सेव करना है। देन उसके बाद में पैकिंग चार्जेस वाला जो हमारा लेजर है, तो उसका वहाँ पर भी एक ऑप्शन आएगा, मेथड ऑफ अप्रोप्रिएशन इन परचेस इनवॉइस। ये ऑप्शन में भी हमको वही सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद नॉर्मल इसको जस्ट सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में अभी हम वापस जाते हैं वो रिपोर्ट में, डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक एंड स्टॉक आइटम, कीबोर्ड, डेट डालते हैं हमारा 10 जून। अभी देखिए हमने वो पैकिंग चार्जेस के ऊपर हमने एप्लीकेबल किया ऑप्शन, तो उसके लिए पैकिंग चार्जेस वाला 1000 रुपीज अमाउंट हमको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। मीन्स पहले कितना था, यहाँ पर 50,000 था, 50,000 था। अभी हमने वो ऑप्शन यस किए ना, तो 1000 बढ़ चुका है और टोटल वैल्यू कितना, 60,000। और आगे अगर हमको CGST और HGST वाला भी अमाउंट अगर वहाँ पर दिखाना है, तो इसको भी कंट्रोल इंटर करना है। देन ये ऑप्शन यहाँ पर भी एक दिया है, अप्रोप्रिएट टैक्स वैल्यू इन परचेस इनवॉइस, इसको यस कर लेंगे। दोनों को भी यस कर लेते हैं।
ये मेरा सेव हो चुका इनवॉइस। ये इनवॉइस मेरा सेव हो चुका है। अभी क्या दिख रहा है देखिए, अभी टोटल वैल्यू उसका दिख रहा है जो हमारा एक्चुअल में है विथ जीएसटी। 60,000 हमारा टोटल वैल्यू आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने ऑप्शन यस किए। अगर वो ऑप्शन नो रहते तो हमको सिर्फ बेसिक वाला ही दिखता है। तो ये एक्चुअल में इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेस का जो ऑप्शन है वो इसके लिए ही रहता है एक्चुअल में ज़्यादा। तो ये था हमारा एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेस। सो एंड माय साइड में। Yeah, thank you, Firoz and Priyanka. So nice presentations of you. And so we are now wound up the session. So thank you, everyone, and thank you for joining us today session. Thank you.